दिस इज़ इंडिया। ये कहानी भारत की है जिसकी जनसंख्या 1.3 बिलियन है। भारत न केवल एक तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बट ऑल्सो हैज़ इमर्ज्ड एज अ सुपर पावर। यहाँ पर रहने वाले नौजवानों की जनसंख्या पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा है, जहाँ भारत की पॉपुलेशन एज ग्रुप इंडेक्स में 25 से 44 ईयर्स के बीच में 27.6% लोग हैं, लेस देन 18 41.1% है, लेस देन 21 47.9% है। उस देश की उन्नति में कोई रुकावट तो हो ही नहीं सकती। Where one nation has a backbone of millions of youth, then definitely the future should be bright. चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एजुकेशन हो या एम्प्लॉयमेंट हो, our country should have been the सोने की चिड़िया। But is this really happening? Unfortunately, it's not happening. Where the digital explosion brought a massive awareness and reach among the masses, but somewhere it has failed to fulfill the youth's biggest problem, and that is employment generation. Hi, I'm Rahul and welcome to your channel LOT Loads of Talks. This video is very important for all of us. Currently we are facing this crisis of unemployment, and I request you to share this video with as many as people you can so that our voice can reach to all और हमारी आवाज़ कहीं दब के न रह जाए. And yes, don't forget to please like, subscribe and share this channel. By now, you must have all experienced the wave of unemployment. As per the CMIE report, Center for Monitoring Indian Economy, by June 21st, 2020, the overall unemployment rate was 8.5%, out of which in urban area, only 11.2% was the unemployment rate, which was at the highest peak, against the rural, which was only 7.6%. अगर हम वही ओवरऑल डेटा को लेते हुए बात करें, then on the month of April during the lockdown, the unemployment rate rose to 23.5%, and where more than 27 million youths lost their jobs. And post the lockdown, it just fell down to 8.5%, meaning it's 23.5% से वो 8.5% पे आ गया है, which is actually equal to the pre-lockdown unemployment rate. Somewhere there is a huge gap in the unemployment rate figures, and we need to analyze it. बहुत सी कंपनियों ने ऑलरेडी अपने एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ कर दिया है, एंड द प्रोसेस इज स्टिल गोइंग ऑन। इवन दो बहुत से बिजनेस खुलने के बावजूद भी दे आर स्टिल वर्किंग एट 50% वर्कफोर्स, एंड दैट टू विद लेसर सैलरी। लेकिन ये कहानी अनएम्प्लॉयमेंट की कब से शुरू हुई है? इज ओनली द कोविड-19 द फैक्टर। अगर हम हमारी जीडीपी की बात करें, दिन 2019 के इलेक्शन के दौरान ही हमारी जीडीपी गिरने लगी, एंड कोविड-19 आते ही हमारी इकोनॉमी पूरे तरीके से डाउन हो गई। करेंटली हमारी जीडीपी 4.2% है, एंड इट इज सेट टू कॉन्ट्रैक्ट बाय 3.1% बाय एंड ऑफ दिस फिस्कल ईयर। इंडिया फेस्ड द वर्स्ट सिचुएशन ड्यूरिंग द लॉकडाउन when lakhs of migrants lost their daily income and they had to move back to their respective villages, and we all have seen the unbearable side of the exodus. And the worst is yet to come. Kuwait has recently passed a bill where it is going to give the first preference to its residents over the foreigners. मतलब कि वहाँ पे रहने वाले 8 लाख भारतीयों को वापस आना पड़ेगा अपनी जॉब छोड़ के अपने फैमिलीज़ के साथ। सो आप इमेजिन कर सकते हैं कि इस तरीके की सिचुएशन भारत में और कितना इम्पैक्ट करेगी। एंड मोस्ट प्रोबेबली most of the Gulf countries are also going to pass the same bill, and this is really going to be very devastating for all the people. In USA alone, the rate of unemployment has already crossed 20% mark, and the same goes with all of the countries as well. This pandemic has literally affected the world's economy. As per the analyst, ये जो unemployment और economic down का जो trend है, ये 2020 तक चलता रहेगा, and post 20 in the fiscal year of 21, there is a probability or a hope where the economy will recover,
and this problem might get reduced. पर हमारी सरकार इस मुसीबत से लड़ने के लिए क्या कर रही है? Our government has taken many initiatives. They have pushed and forced Made in India concept, and they have released a relief package for boosting the economy, but somewhere the economy is not growing, somewhere the problem still lies. But the rural sector has shown a massive improvement where the unemployment rate is only at 7.6%, whereas urban area में बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब है अभी, because people are losing their jobs, and people currently who are already working, they are working at a very lesser salary, and most of them who have already their jobs, उनके lay off होने के chances भी है. So the situation is very critical currently. यह मुद्दा इतना इम्पॉर्टेंट होते हुए भी क्यों इसे लोग इग्नोर कर रहे हैं और हमारी आवाज़ लोग क्यों नहीं सुन पा रहे हैं? क्योंकि इन सब के बीच में इंडिया चाइना क्लैश, बॉयकॉट चाइनीज़ प्रोडक्ट, चाइनीज़ ऐप बैन, इन सब न्यूज़ ने ही ऑलरेडी इतना फुटेज ले लिया है कि इन सब चीज़ों की अब बातें नहीं हो रही है, चाहे वो इकोनॉमी हो, अब चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट हो, इन सब चीज़ों के बीच में ही अब ये आवाज़ खो चुकी है, एंड वी हैव टू रेज दिस वॉइस अगेन. पर इस अनएम्प्लॉयमेंट से जूझने के लिए व्हाट कुड बी द पॉसिबल सॉल्यूशंस टू इट? चेंज इन इंडस्ट्रियल टेक्निक, जहां हम बैलेंस्ड वे में कैपिटल टेक्निक एज वेल एज लेबर इंटेंसिव टेक्निक को अप्लाई कर सकते हैं, जहां मशीन और लेबर पावर का दोनों तरीके से बखूबी इस्तेमाल हो सके. टैकलिंग सीजनल एम्प्लॉयमेंट, हम अपने किसानों को प्रेरित कर सकते हैं मल्टी वेरिएंट क्रॉप उगाने के लिए, एंड वी कैन ऑल्सो मोटिवेट देम फॉर डूइंग बिजनेस इन डेयरी एंड प्रोडक्ट फार्मिंग. फोकसिंग हेविली ऑन स्किल डेवलपमेंट्स, जहाँ पे लेबर इंटेंसिव के बजाय स्किल इंटेंसिव होनी चाहिए हमारी अप्रोच. सपोर्ट टू द सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल, हमें उन्हें प्रेरित करनी चाहिए कि वो और बिजनेस करें और रॉ मटेरियल्स खरीदें. मोर स्ट्रेस इन मैन्युफैक्चरिंग, भारत को ना केवल इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग पे बट इवन दे हैव टू फोकस इन द एक्सपोर्ट, so we have to stress more on the manufacturing sector. Massive investment in solar projects and renewable sources of energy, कम लागत में हम मैक्सिमम फ़ायदा उठा सकते हैं इन सब प्रोजेक्ट से. पॉपुलेशन कंट्रोल, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हम पॉपुलेशन को कंट्रोल करें. बूस्ट टू स्टार्टअप, हमें दोबारा से स्टार्टअप इकोसिस्टम को जगाना होगा. भले सरकार अपनी तरफ से कोई भी कोशिश कर रही है, बट एज ए सिटीज़न हमने क्यों अपने आँखों को बंद करके रखा है? हम क्यों चुप है? सेंटिमेंट्स और नेशनलिज्म से सिर्फ घर नहीं चलेगा और ना ही पेट भरेगा. नाउ इट्स हाई टाइड, अब समय आ गया है कि विथ नेशनलिज्म वी विल हैव टू ऑल्सो अप्लाई द कैपिटलिज्म. वी विल हैव टू स्टार्ट फोकसिंग हेविली on economic structure, made in India concept and massive manufacturing. सरकार भले जागे या ना जागे, बट हमें ज़रूर जागना होगा और हमें जागरूक होना होगा इस मुद्दे पे. It is definitely going to take some time to normalize the situation, और इकोनॉमी को ऊपर उठने में भी टाइम लगेगा, ये हम भी जानते हैं. बट एज ए सिटीज़न ये हमारा कर्तव्य है कि हम सरकार को ये बताएं कि हमारी दिक्कतें क्या हैं, और मोस्ट प्रोबेबली सरकार को भी ये मालूम है, बट हमें चुप नहीं रहना है. वी विल हैव टू रेज दिस वॉइस एंड आई नीड योर सपोर्ट इन दिस. भले सिचुएशन नॉर्मलाइज होने में टाइम लगे, बट इसे हमारे नॉर्मल लाइफ में पूरी तरीके से नहीं उतारना है. प्लीज़ आप इस मुद्दे को उठाइए, एंड वी नीड टू सपोर्ट ईच अदर. एंड हियर बाय आई एंड दिस वीडियो. लाइक आई ऑलवेज से, respect all, love all, namaskaram.